So with the super amazing cast of Rana Naidu, this is me RJ Satvik from 98.3 Mirchi. Welcome to Mirchi Studio. कैसे हैं आप लोग? Thank you sir, thank you Satvik. So Rana Naidu का season 2 is coming 13 जून को Netflix पर. What was your reaction अभिषेक जब कृति enter हुई season 2? अरे मुझे पता ही नहीं था. I had no idea यार. I actually didn't have any idea. मतलब then I saw, then Karan told me that अच्छा ये सब. The thing is that Rana में अलग-अलग families हैं, and he's the pillar of all the families. He's a pillar of all the families. Yeah. So he knows everybody. There is another family going on. But we don't know what is happening. सबसे सीरियस सीन मेरे को बताओ आप जो आप करने की कोशिश कर रहे थे बट वो एंड में होते होते डिजास्टर हो गया. I think Karan will answer that. नहीं. There was no such scene. There was no such scene. No. सबने एकदम जैसा आपने बोला वैसा ही. बिल्कुल. That's the power of being a good director. Good director. So, फेवरेट एक्टर कौन रहा आपका जो बिल्कुल टाइम पे आ रहा है इंसान बिल्कुल जैसा प्रॉम्प्ट मिल रहा है वैसा कर रहा है? If you have to choose one. I can't choose one because literally सब टाइम पे आते थे, सब अपना काम एकदम ढंग से करते थे, जो मैं कहता था हो जाता था. It was just beautiful and that's what I love working with these big name actors, these big stars. They're super professional और ये बात I don't think आम जनता जानती है, but बहुत there's a lot of rumors and negativity, but I feel like film industry में जो हमारा discipline है वो कोई बात नहीं करता है इस चीज़ के बारे में. हम कुछ आर्मी से कम नहीं है. 6 बजे पहुंचना है तो पहुंच जाते हैं हम. एक मिथ भी है कि डिसिप्लिन है तो फन नहीं होता होगा बट आई एम श्योर कि लाइक सीइंग यू ऑल मतलब एक फन माहौल रहा होगा. सबसे ज्यादा प्रैंक्स कौन कर रहा था सेट के ऊपर? I would have to say that would be Rana because वो सब फैमिली में घुसे रहते हैं ना यहाँ वहाँ. और ऐसा शूट पे प्रैंक नहीं करते हैं लोग यार. मतलब रीडिंग करते हैं, रिहर्स करते हैं, काम शूट करते हैं. ये कैसे कल्चर की बात कर रहे हो यार? ऐसा प्रैंक्स आप नहीं करते हैं सेट के ऊपर. सबसे डिफिकल्ट सीन कोई रहा हो? आप जनरली आप पहले कर चुके हैं. कृति आप सीजन 2 में ऐड हुई हैं. एक थोड़ा सा वक्त लगा आपको टू गेट अ हैंग ऑफ इट. व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सीन फॉर यू? For me they were all very difficult because Alia is very different. Alia मेरे किरदार का नाम है. वो मेरी फंडामेंटल पर्सनालिटी से बहुत अलग है. तो इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा आया था कि मुझे रजत सर इज प्लेइंग माय डैड. तो वी आर अ डिफरेंट फैमिली. सो देयर इज तनुज, रजत सर एंड माई सेल्फ. एंड एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि उन्होंने मुझे पूछा कि यार तू जैसे बात करती है तेरा तरीका बदल गया. तो देयर वर 4-5 months in between that even my mother was pointing out and saying you're talking like a different person because I'd gotten so much into Alia and it was something that I really had to work for because it didn't come organically to me. Like genuine effort गया था उसमें. तो I started speaking like Alia, like in a very weird husky tone I'm talking and a lot of my friends were very like thrown by that. But I think that was the only difficult part. वो शुरुआत की एक वो जो दिक्कत फील होती है वो हो गई लेकिन जैसे ही बाल काटे वो अपने आप ऑर्गेनिकली मैं वो किरदार बन गई. सर एनी वन थिंग जो आलिया से आप लेके रखना चाहोगे कृति में कि ये एक चीज आलिया की थी बट नाउ आई वुड वांट टू लर्न इट? Oh, she's extremely cutthroat and she thinks for herself. She's a really smart cookie. I'm smart, but I would love to be Alia smart and Alia cutthroat. What about your character? Oh, I'd like to not keep many things of this character in my real life. But I think he has an unbelievable organizational capacity. Yeah. Like if Rana was not a fixer and he would have been in some multinational company, he would have been a seriously amazing CEO, I think. Yeah, I think his time management skills are something else. Yeah, he has great time management. Yeah. I think that's something that I'd Also probably in do. Bombay traffic, you can drive from anywhere to anywhere. And be there on time. He's everywhere. That's true. What is that? Everywhere, all at once. All at once. Everything. Everything Yeah, everywhere yeah. all at once. That's what Rana Naidu is. Okay, nice. And Abhishek, what about you? I like his purity. I think it's a very nice character to just go to and learn to feel things, like as like a beginner. Because I think बहुत ही प्यारा और मासूम सा character है. So I also feel that when I'm on set. वो तो रियल यूजुअली मैं नहीं हूँ. हाँ बिल्कुल नहीं. मासूम तो बिल्कुल लगता नहीं. है कि वो हाँ? जस्ट लगता है वो मेरी एक्टिंग स्किल है दोस्त. Alright, तो मुंबई ट्रैफिक का जिक्र हुआ. एक ऐसी टिप जो आप मुंबई ट्रैफिक में खुद को देना चाहोगे कि भाई ट्रैफिक में फंसे हो तो ये कर लेना चाहिए? Move to Hyderabad. मैं कहूँगी घर से मत निकलो. घर से मत निकलो. अपने सारे फोन वाले काम जो है ना वो ट्रैफिक में करो. Phone calls, replying to mails, Watching content. Watching content if you don't get nausea because some people get nausea. You can pay your bills, you can stalk people on Instagram, you can do a lot actually. बिल कैसे? वो ट्रैफिक में तो नेट भी जाम हो जाता है ना? नहीं ऐसा थोड़ी होता है. वो सिर्फ फ्लाईओवर के नीचे होता है. अच्छा. या फिर बादल के नीचे. तो मूविंग ऑन, एक बहुत ही बेसिक सवाल. जिसने सीजन 1 नहीं देखा क्या उसको सीजन 2 समझ आएगा? बिल्कुल.
बिल्कुल समझ आएगा. सीजन 2 में क्या ऐसा डिफरेंट है जो सीजन 1 में नहीं था इन टर्म्स ऑफ द फ्लेवर? या वैसा फ्लेवर ही अलग है इसमें. ज़्यादा एक्शन है, देयर इज मोर, इट्स मोर रिलेंटलेस. अभी कुछ सेटअप नहीं करना है हमें. इट्स ऑल यू नो हु दीज पीपल आर और क्या होने वाला है इनके साथ, वो एक्सप्लोर करने के लिए. इट्स मोर प्लॉट ड्रिवन, इट मूव्स रियली फास्ट और इट्स It's also very personal this time, much more personal. हाँ, so there's no external fixing that needs to be done. जो हो रहा है अभी, राणा को अपना खुद के फैमिली को फिक्स करना है, अपने आप को फिक्स करना है, एक लास्ट जॉब करना है राणा को इस सीजन में, एंड एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन दैट वन थिंग. सो इट्स लेस एपिसोडिक, मोर कंटिन्यूस स्टोरी एंड रिलेंटलेस. इंटरेस्टिंग. सिनेमा, OTT, कैमरा, व्हाटएवर यू कॉल इट, सीक्वल्स को कैसे देखते हैं आप लोग? योर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू कि सीक्वल्स क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो कैसे हैं? व्हाट इज द ट्रेंड राइट नाउ? If the characters are fun, they should be in a sequel. If they're not, they should be killed and not have a sequel. No, I think that's a fair logic. See, it's like if you enjoy a character, see, there've been characters that people have been following for say 30-40 years in books or in other forms. And I think there's some beauty about that. But I think unless you're authentic about it, if you're trying to set it up like a project in that sense, it's not. You need to have a continuous story. You need your characters to grow. व्हाट डू यू थिंक कृति? मुझे हमेशा ये लगा है कि कभी-कभी जब किरदार ऐसे होते हैं ना जो आपके दिल को छू जाते हैं, इन सम वे और अनदर, व्हेन यू फाइंड अ रिलेटेबिलिटी इन इट, यू विल इवेंचुअली कंटिन्यू टू रिलेट टू इट, क्योंकि जब वो किरदार बढ़ रहा है आप भी जिंदगी में बढ़ रहे हो. सो यस, व्हेन यू हैव इट इन यू कि वो एक किरदार का प्लेटू नहीं आ रहा, उसमें पोटेंशियल है टू ग्रो अ लॉट, क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स इवन वी ग्रो, राइट? बट वो पोटेंशियल सिर्फ एक राइटर और डायरेक्टर देख सकता है. तो उन पे निर्भर है कि वो कैसे लिखते हैं उसको. जितना वो अच्छा लिखेंगे उतना वो अच्छा बनेगा. अगर वो पेपर पे अच्छा नहीं है तो हम कितना भी काम कर ले वो नहीं होगा. विच इज व्हाई दे कॉल द डायरेक्टर द कैप्टन ऑफ द शिप. दे आर जेन्युइनली द बैकबोन. अगर आपको पेपर पे नहीं मिलेगा ना वो किरदार, वो आपको पढ़ते हुए फीलिंग नहीं आएगी तो वो नहीं निकल के आएगी. जावेद साहब ने भी ये बात कही थी कि अगर मैं एक होटल के कमरे में बैठ के अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ और मैं जो लिख रहा हूँ किरदार के बारे में, अगर मुझे चाहिए कि मेरी ऑडियंस रोए वो देख के, अगर मेरी आंखों में एक आंसू नहीं आया ना, वो पहुंचते पहुंचते कभी वो आंसू नहीं निकलेगा ऑडियंस की आंखों में से. उन्होंने कहा था जब मेरी ऑनेस्टी होगी ना पेपर पे, इवन इफ इट्स गेटिंग लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, माय एक्टर विल अंडरस्टैंड एंड माय डायरेक्टर विल अंडरस्टैंड एंड माय ऑडियंस विल अंडरस्टैंड. सो दैट्स व्हाट आई ट्रूली बिलीव, दैट व्हेन यू राइट थिंग्स वेल दे विल वर्क. क्या बात है. What do you feel, Abhishek? As a cinephile, of course, like you watch some good movie, you want the movie to continue. So it's great, like you know, for an audience who जिसको film पसंद है, तो you know, you watch that film again and again. In fact, बोलते भी कि अगर कोई अच्छी film लगती है तो बार-बार देखो, perspective change आता है. I think sequels are that. I mean, it's just giving back to the audience because they gave us the love. But also we have to be very careful that because we are making a sequel and that's happening because the audience loved it, we don't really fool them with that brand name, because that then I think the audience will start losing trust. So Karan, राणा नायडू का ऑफकोर्स ये सीक्वल ही कहेंगे. ऑफकोर्स सीरीज में सीक्वल इज अ कॉमन ट्रेंड, इस सीजन है. बट आप जब इस बारे में सोचते हैं कि ये सीजन 2 है, तो इस सीजन 2 में क्या किरदार छू पाए, या कहानी का प्लॉट था, या वो एक प्रीमाइस वैसा था कि आप इसे एक नया ट्विस्ट दे सकते थे? एक फर्स्ट इंस्टेंस क्या था आपके दिमाग में बिफोर मेकिंग सीजन 2? आई थिंक देयर वाज लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम द फर्स्ट सीजन की हमें समझ में आ गया कि हमने क्या बनाई है, बिकॉज इट शेप्स अप एंड इट्स सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन एट द एंड ऑफ इट. जब फाइनल रिलीज होती है तो आई फील वो थोड़ा डिस्टेंस लेके व्हेन यू फाइनली सी इट आफ्टर सम 2-3 years, यू वर्क ऑन वन प्रोजेक्ट एंड यू वॉच इट एंड यू अंडरस्टैंड ओके मे बी दिस we could have improved on, this is something that we can work on. तो there are some takeaways वहाँ. ऐसा नहीं है कि कुछ आइडियाज हमने सेव करके रखी थी कि सीजन 2 में यूज़ करेंगे, ऐसा करेंगे सीजन 2 में. एवरीथिंग दैट्स अ गुड आइडिया, आई ट्राई टू पुट इट इनटू व्हाटएवर वी वर राइटिंग एट दैट मोमेंट. आई थिंक द एक्साइटमेंट वाज, आई थिंक नेटफ्लिक्स आल्सो वांटेड अस टू मेक इट बिगर एंड मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज बहुत सक्सेस भी मिली फर्स्ट सीजन को. सो देन आई गॉट दैट प्लेटफॉर्म टू डू दैट. और हमें we just had to exploit that potential. So writers and I just sat down and tried to take it to the next level. So प्लेटफॉर्म मिला इनको, सरप्राइज मिलेगा आपको 13th of June को नेटफ्लिक्स पर. राणा नायडू सीजन 2. 98.3 मिर्ची से दिस इज मी सात्विक. इट्स हॉट.